جو میں نے ڈیجیٹل ایکس رے مشین دی ہے کیا وہ مطلب عام لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیے ہم ایز سول سوسائٹی ڈی ڈی سی کے پاس آپ ان کو بولے کہ ہم نے ان کی نیند حرام کر کے رکھی ہے. آج ڈیجیٹل زمانہ ہے, آج ایک پیسوں کا حساب ہے, تو ڈی ڈی سی بیچارہ کہاں سے کہا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہو دا کشمیر سکرپٹ اور میں اعجاز تانترے. ناظرین کرام, پچھلے 2 دنوں سے لگاتار ضلع گاندربل کے صفا پورہ علاقے کی بات کریں گے. ڈی ڈی سی صفا پورہ اور بی ڈی سی صفا پورہ پر کچھ لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے سرپنچ اور پنچ حضرات جو ہیں وہ الزامات عائد کر رہے ہیں کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ انتخابات کے بعد ترقی یہاں پہ نہیں ہوئی ہیں اور یہ فنڈس اگر ان کے پاس آتے ہیں اور فنڈس جاتے کہاں ہیں. بہرحال آپ نے کل میرا ویڈیو بھی دیکھا ہوگا جس میں سے میں نے صاف طور پہ کہا تھا کہ اگر ڈی ڈی سی صفا پورہ عبدالرشید بٹ صاحب پہ یہ الزامات عائد کیے ہیں, اگر یہ بے بنیاد ہیں, اگر یہ غلط ہے, تو میرا بھی یہ حق بنتا ہے, میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں ڈی ڈی سی صفا پورہ کے ساتھ بات کروں, ان سے جانوں آخرکار اگر ان کے پاس فنڈس آتے ہیں تو فنڈس جاتے کہاں ہیں اور جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں اس پہ کیا یہ حقیقت ہے اور کس حد تک یہ صحیح ہے. بہرحال میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ جس طریقے سے آپ پہ 2 دن کی بات کریں گے, پچھلے 2 دن سے لگاتار سوشل میڈیا کی بات کریں گے, سرخیوں کی بات کریں گے. ہر جگہ پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ پہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ انتخابات کے بعد یہاں پہ ترقی کچھ نہیں ہوئے ہے اور اگر فنڈس آتے بھی ہیں اور فنڈس جاتے کہیں, یہ پنچ اور سرپنچ حضرات کے ساتھ ساتھ کچھ لوکل بھی یہاں پہ ہیں جو آپ سے یہ جواب مانگ رہے ہیں. آخرکار ایسے آپ چیز کو دیکھتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے دیکھا شاید, میں آپ کو اپنی فنڈس کی صفائی کی لوگوں کے پاس جائیے اور دیکھیے ڈی ڈی سی نے کہاں پیسے کیے. دیکھیے جو میرا پیسہ ہے, جو ہماری سول سوسائٹی صفا پورہ کی ہے, ان کی ہدایت ہے مجھے اور لوگوں کی ہدایت. جو بھی آپ کا پیسہ آ رہا ہے آپ وہ رائے عام میں ڈالیے, جیسے ہاسپٹل, ایڈمنسٹریٹو بلاک, آپ بڑے بڑے کام دیکھ لیجئے. اور جو ہمارے سرپنچ بیٹھے ہیں, 5 حضرات بیٹھے ہیں, وہ جو ٹائل سسٹم ہے اور یہ ڈرین وغیرہ ایٹسٹرا وہ بھی کر سکتے ہیں. میرے پیسے جو ہے وہ کسی بڑے کام میں جانا چاہیے. پچھلے سال سول سوسائٹی اور صفا پورہ کی ہے, میں ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوں, ان کو میں دل سے سلوٹ کرتا ہوں, دل سے پیار کرتا ہوں. وہ ایسے بندے ہیں, ایجوکیٹڈ بندے ہیں, انہوں نے اپنا میمورینڈم میرے پاس رکھا ہے پچھلے سال کا. ہمیں ہاسپٹل میں ڈیجیٹل ایکس رے مشین چاہیے, ہمیں پی ایچ ای کے لیے یہ جو ہاٹ لائن چاہیے, ہمیں ہاسپٹل کے لیے ہاٹ لائن چاہیے. اور میں نے 40 لاکھ روپے اسی میں ڈالے اور کچھ پیسے بچے ہیں, اس میں نے ٹرانسفارم کچھ اور الیکٹرک پولز لائے ہیں. اور لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آج ڈیجیٹل زمانہ ہے, آج ایک پیسوں کا حساب ہے, تو ڈی ڈی سی بیچارہ کہاں سے کہا جائے گا, یا میرا بی ڈی سی یا میرے سرپنچ 5 حضرات وہ پیسے کہاں سے کھا جائیں گے. آج ٹینڈرنگ ہوتی ہے ان پیسوں کی. جس طریقے سے آزاد صاحب نے وہاں پہ الزامات عائد کیے تھے آپ پہ کہ صفا پورہ سی میں ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا ہے, اور کتنا اس چیز کو آپ مانتے ہو کہ حقیقت میں وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے؟ دیکھیے میں نے 10 لاکھ پچھلے سال 10 لاکھ میں نے الیکٹرک پولز 10 لاکھ میں رکھے ہیں. جتنا شیئر صفا پورہ کا سی کو جاتا تھا, کچھ پولز 2 3 4 پولز وہ میں نے بیچ دیے. اب اس نے کہا کہ صفا پورہ سی میں کچھ کام ہی نہیں ہوا ہے, اب اس کو کہ ریزائن کیجیے. تو میں نے الیکٹرک پولز دیے یہاں پہ تقریباً, یہ تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ بنتا ہے یہاں پہ. اور جو وہ ٹرانسفارم کی بات کر رہا تھا, وہ ٹرانسفارم وہاں پہ بی ڈی سی اور یہاں کا جو میرا شیئر ہے جہانگیر صاحب, پرویز احمد ڈپٹی سرپنچ اور بی ڈی سی صاحب یہاں پہ ہی رہتا ہے اسی صفا پورہ سی میں. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ٹرانسفارم یہاں پہ دیں گے, اور وہ میرے کہنے پہ وہاں پہ ٹرانسفارم لگ گیا. اور اگر ہم دیکھیں اس کا کام کچھ بھی نہیں ہے, کہیں گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے. میرا کام دیکھ لیجئے, میرا کام راہ عام میں لگا ہوا ہے, اور باضابطہ آپ چیک کیجئے, وہ میرا کام آپ کو دکھائی دے گا ہر جگہ پہ. اور اس سال ہم نے کیا کیا, اس سال ہم نے سرپنچ صاحب اور 5 صاحبان بیٹھ کے ہم نے ایک فیصلہ کیا, ہم ایک ایسڈ بنائیں گے صفا پورہ کے لیے, ایڈمنسٹریٹو بلاک بنائیں گے. اس میں ایک سرپنچ ہے پہلی پورہ بی کا عبدالرحیم صاحب, اس نے 5 لاکھ روپے نہیں دیے ہیں. اور یہ جو عزیز صاحب بول رہا ہے کہ ہم نے 5 لاکھ دیے, وہ کوئی نہیں رائٹ نہیں رکھتا ہے. سرپنچ صاحب جو جہانگیر ہے اور پرویز صاحب جو ڈپٹی سرپنچ ہے, اس نے 5 لاکھ روپے دیے ہیں. اور وہ وارڈ ممبر ہے, اس کو چاہے وہ وارڈ ممبر میں ہی رہے, علاقے کی بات نہ کرے. یہاں پہ میرے شیر بیٹھے ہیں, جہانگیر صاحب وہ سرپنچ صاحب ہے, اور یہ صفا پورہ اے میں آپ دیکھ کے میرا شیر بیٹھا ہے, الطاف صاحب میرا صاحب بیٹھا ہے, اتنے سارے شیر ہیں میرے. تو وارڈ ممبر جو ہے ان کو وارڈ ممبر کی وارڈ کی بات کرنی چاہیے, علاقے کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, جس طریقے سے آپ نے بات کہی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وارڈ ممبر یہ نہیں, لیکن وارڈ ممبر کو چاہے وہ ڈھنگ سے بات کریں, وہ علاقے کی بات نہ کریں. ہمیں پتہ ہے کس طرح علاقہ چلانا ہے.
इलाका का DDC मेंबर मैं हूँ, BDC यहाँ पे मेंबर बैठे हैं, हमें पता है किस तरह इलाके में। जिस तरीके से आपने बात की कि यहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं थी, या इलेक्ट्रिक पोल्स की बात करेंगे, ट्रांसफार्मर्स की बात करेंगे, और यहाँ के लोगों के साथ भी हमने बात की, बहुत सारे लोग भी आपके यहाँ पे आपके साथ थे जिन्होंने कहा कि यहाँ पे डेवलपमेंट आ चुकी है और काम भी हो चुका है। बहरहाल ऐसे भी लोग हैं जिस तरीके से अभी आप कैमरा के सामने लोगों को ये जवाब दे रहे हो, क्या आने वाले टाइम पे यहाँ की इंतजामिया को या सिविल सोसाइटी यहाँ पे है या जितने भी यहाँ पे आला हुकाम इस एरिया की बात करेंगे, जो बड़े बड़े लोग यहाँ पे हैं, चेयरमैन मस्जिद शरीफ का या कोई भी है, क्या आप आने वाले टाइम पे उनको ये जवाब दोगे ऑन ग्राउंड, आप ये उनको कह दोगे कि मैंने कहाँ पे क्या कुछ काम किया है? मेरा काम जो है वो आप देखिए हर जगह पे वो फैले हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अब बनने वाला है, हॉस्पिटल मैंने काम किया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो मैंने डिजिटल एक्सरे मशीन दी है, क्या वो मतलब आम लोगों के लिए नहीं है, मीर आबाद के लिए नहीं है, कलपुरा के लिए नहीं है, बटपुरा के लिए नहीं है, वो पूरी पब्लिक के लिए है? अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का फैसला लिया सिविल सोसाइटी के कहने पे या आम लोगों के कहने पे, अगर उनकी हिदायत है हम कुछ एसिड बनाए, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक मीराबाद के लिए नहीं है? क्या वो कोतरमोला के लिए नहीं है? क्या वो मेरे जहाँ मैं बटपोरा में रहता हूँ उनके लिए नहीं है? ये बड़ा एसिड है। मैं यही चाहता हूँ जो पीछे सिविल सोसाइटी है और जो पंच हजरात है या सरपंच साहब है, उनकी हिदायत है मुझे कि आप अपना पैसा बड़े काम में लगा, मैं खुश हो जाता हूँ। जी बिल्कुल। एक और अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, जिस तरीके से यहाँ की एक मस्तूरात, वो भी हमारी माँ है, हमारी बहन है, जिसने आप इल्ज़ाम आयद किया था कि अब्दुलरशीद साहब ने हमसे ये कहा था कि AEE साहब को आप कोई चाय पानी दीजिए, कुछ पैसे दीजिए, तब तक आपका काम नहीं हो सकता है। अगर हम बात करेंगे आपको लोगों ने चुना है, अगर आज आप DDC हो, अगर कोई मंत्री हैं, अगर कोई DC हैं, अगर कोई मिनिस्टर है, वो लोगों की वजह से होते हैं और लोग ही उसको वोट डालते हैं और लोग ही उसको चुनते हैं। जिस तरह से आप इल्ज़ाम आयद किए हैं, किस तरीके के आप इस चीज़ को देखते हो और कितना ये दुरुस्त है? देखिए, वो मेरी बहन है, इसमें कोई शक नहीं है, उसने वोट भी डाला है मुझे, उसका गिला है मुझ पे, मेरे सर पे। लेकिन जब उसने कहा कि चाय, जई साहब को चाय दीजिए, ये सरासर झूठ है, बिल्कुल गलत एलिगेशन है। इस पर मैंने एक FIR लॉन्च किया है और वो कोर्ट जाने, कानून जाने, अगर वो प्रूव कर सकती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, उस बहन से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी ने इस्तेमाल किया है, आप आइए मीडिया पे और बताइए किसने मुझे इस्तेमाल किया है, फिर भी आप मेरी बहन हो। लेकिन सही तरीके से आपने वहाँ पे मेरे ख्याल से उसने सही तरीके से वहाँ पे अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की है, तो मुझे उसका गिला है, उसने गलत बात बोली है, तो अब कानून जाने वो जाने। बिल्कुल जी। नाज़रीन किराम, मेरे साथ यहाँ पे एक और नौजवान यूथ यंग हैं और एजुकेट भी हैं, सुहेल अहमद मेरे साथ मौजूद हैं और सिविल सोसाइटी सफापुरा के मेंबर भी हैं, उसके साथ साथ स्पोक्स पर्सन भी हैं और हमेशा समाज पे नज़र रहती हैं और इस एरिया की बात करेंगे यहाँ पे हमेशा एक्टिव रहते हैं। सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे मैं ये मुख्तसर में बात करना चाहता हूँ, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़र समाज पर रहती है, जिस तरीके से इल्ज़ाम आयद किए गए हैं हमारे DDC सफापुरा अब्दुलरशीद भट्ट साहब पे, कैसे आप चीज़ को देखते हो और कितना आप इस चीज़ को आप कैसे देखते हो और कितना इस चीज़ को मानते हो आप? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, आई हैव बीन वर्किंग हियर एज एन एक्टिविस्ट। तो सिविल सोसाइटी के बगैर भी मतलब मेरा यहाँ पर नज़र रहती है यहाँ के डेवलपमेंट्स पे। ये तो पहले सबसे खुश आइंद बात है। अगर आप लार्ज लेवल पर डेमोक्रेसी की बात करें कि यहाँ पर लोगों को बोलने का हक है और क्रिटिसिज्म, कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर लोग आए, फेवर में बात करेंगे, खिलाफ बात करेंगे, ना तो इस पर दिल पे लेने की ज़रूरत है और हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। अब अगर इल्ज़ाम तराशी की बात आती है, अगर सपोज़ रिश्वत की बात आती है, करप्शन की बात आती है, तो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके लिए एजेंसीज खोल रखी हैं। आपके पास एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है। आप अगर आपको रिश्वत कोई मांग रहा है, एंटी करप्शन से मिलकर आप ट्रैप कर दीजिए, उस बंदे को रंगे हाथों पकड़वाइए। तो ये चीज़ें उसके लिए एजेंसीज़ हैं। इल्ज़ामात पे मैं बात नहीं करूँगा। अब DDC साहब की बात करें, मेरे ख्याल से जिन चीज़ों पे आवाम को अप्रिशिएट करना चाहे वो अप्रिशिएट करते नहीं हैं। अगर आप देखें 2016 में मैंने RTI किया था अपनी PHC सफापुरा में कि यहाँ पर कितना पैसा आया है 2-3 सालों में, और मैं आपको वो पेपर दिखाऊंगा। आप हैरान होंगे कि 2 साल में 3 सालों में मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये ये जो इनकी तरफ से आया था, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। बिल्कुल उसको साइड लाइन कर दिया गया था। कोविड-19 पैंडमिक में हम DDC साहब के पास गए। हम उनके काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि ये काफ़ी रिसेप्टिव है, काफ़ी एक्सेसिबल है और हम्बल है। हम उनके पास गए, रात के 10:30 बजे कॉल करते हैं, 11 बजे 12 बजे हम कॉल करते हैं, कोई भी बंदा करेगा, ये हाजिर रहते हैं। इनके कैपेसिटी में जितना भी होता है वो करते हैं।
हम उनके पास गए तब हम उनको बोला कि सर देखिए मेडिकल इमरजेंसी चल रही है, महामारी है, ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल की आप प्रायोरिटाइज़ कीजिए, इस बार हॉस्पिटल को अपडेट कीजिए। तो उस वक्त हॉस्पिटल हम गए, डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ से बात करके हमें पता लगा कि यहाँ पर की डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है। यहाँ पर हाईवे पे हम रहते हैं, सफापुरा गांधरबल श्रीनगर बांडीपुरा हाईवे पे सफापुरा इलाका है, एक्सीडेंट्स होते हैं, इमरजेंसी में यहाँ पर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं मिलता है पीएचसी में। तब वहाँ पर एक्सरे के लिए इन्होंने अपने फंड्स डाइवर्ट कर दिए वहाँ पर। और देखिए एक बात समझिए आप, अगर आप देखेंगे कितना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फ्यूज़ करता है, बहुत सारा पैसा। एक सरपंच को 2-3 हेड मिला के तकरीबन 1 करोड़ रुपया एक साल में मिलता है। 1 करोड़ रुपये में अगर एक सरपंच अपने इलाके की अपने हल्के की डेवलपमेंट नहीं कर सकता, 50-60 लाख रुपए लेके बीडीसी पूरे ब्लॉक को क्या करेगा। हम उनके पास गए तब हमने उनको बोला कि देखिए हमें एसेट्स की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर एसेट्स क्रिएशन करनी है क्योंकि लोग सफ़र कर रहे हैं। हमें अभी पटवारी साहब यहाँ पर हमें पहाड़ चढ़ना पड़ता है पटवारी के लिए, यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए हमें कभी सुंबल कभी गांधरबल जाना पड़ता था। आम लोग जो कॉमन मैन है वो सफ़र करता था। हम इसलिए उनके पास गए कि आप कॉन्सेंसस बिल्ड कीजिए अपने इलाके में, आप डीडीसी है, आपको सबने वोट दिया है और आप थोड़ा सा बड़ा विजन रखिए। अब हमें ग्रेव यार्ड्स में फिलिंग नहीं करनी है, अब हमें उसे आगे देखना है, अब हमें नालियाँ नहीं बनानी है। पिछले 20 सालों से हम नालियाँ बना रहे हैं, पोलों की सियासत हो रही है पिछले 20 सालों से। अब हमें अपग्रेड होना है, अब हमें जो हमारा प्राइमरी स्कूल है इसको अडॉप्ट करना है, वहाँ पर जो डिजिटल जो हाईटेक क्लासरूम्स बनाने हैं, लाइब्रेरी बनानी है, अपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनानी है, हॉस्पिटल को अपग्रेड करना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना है। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? हम पिछले 4 सालों से हर किसी ऑफिस को हमने वहाँ पर गए, हमने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाए गए, मेयर लिप सर्विस के अलावा कुछ नहीं किया गया। हम उनके पास गए कि साहब आप काफ़ी कुछ कर दीजिए, ये लोग तो बस लिप सर्विस दे रहे हैं, फंड्स नहीं आपके पास है, आप वो काम कीजिए जिससे पूरे इलाके का फ़ायदा हो। तो हॉस्पिटल में जो डिजिटल एक्सरे है, मेरे ख्याल से अगर आप किसी भी आदमी से बात करेंगे, चाहे ग्रेडबल वाला हो, मीर आबाद वाला हो, सबको फ़ायदा है। यहाँ पर अहम बात मैं आपके पास फिर से आना चाहता हूँ, एक और अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। जिस तरीके से अभी डीडीसी साहब ने हमें बाहर कहा था कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लोगों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और लोग मुझे जवाब मांग सकते हैं। और पंच और सरपंच हजरात जो हैं वो भी माने रखते हैं, उनको भी लोग ही वोट डालते हैं और उनकी भी अहमियत होती है समाज में। क्या आने वाले टाइम पे डीडीसी साहब के साथ साथ सिविल सोसाइटी भी उन पंच हजरात सरपंच हजरात को बुलाएंगे, उनके साथ ये मशवरा करेंगे, उनको जवाब देंगे पैसे जो यूटिलाइज किया गया है कहाँ पे किया गया है? देखिए सबसे पहली बात जो बेसिक चीज़ है जो मैं अपने अवाम से कहना चाहता हूँ, जो उनकी गलती अवाम की गलती है। आपको पता है कि जो हमारे सोसाइटी का इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग ग्राम सभा में पहले आते नहीं हैं। ग्राम सभा में जब पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, फिर अगर मैं ग्राम सभा में अपना काम नहीं लिखवाऊंगा, फिर मुझे कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि उस साल मैं अपने सरपंच से बोलूँगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो बाइकआउट करता हूँ ग्राम सभा का। ग्राम सभा में सबसे पहले हमें उसको इफेक्टिव बनाना है। लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जब भी ग्राम सभा की नोटिफिकेशन निकले आप आया कीजिए और उस वक्त अपना प्लान दिया कीजिए ताकि प्रोग्रेसिव प्लान दीजिए। ये लोग नहीं आते हैं उस वक्त ग्राम सभा में, फिर वहाँ पर जो लोग वहाँ पर बचे रहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, इस बार वो ग्रेव यार्ड है उसमें इतना पैसा दे दीजिए, वो नाली बनानी, एक नाली 10 बार, एक ग्राउंड को 10 नॉमेनक्लेचर के अंदर पैसे निकलते हैं, 10 साल से ग्राउंड ही बन रहा है, अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुआ। ऐसे ऐसे कामों पे यहाँ पैसे खर्च होते हैं। इसलिए मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है कि आपका काम है, देखिए हम एज सिविल सोसाइटी डीडीसी के पास आप इनको बोलिए कि हमने इनकी नींद हराम करके रखी है, ये छोड़े डेवलपमेंट के पास कौन सा पैसा आता है, डेवलपमेंट हो जाएगी। डेवलपमेंट के बगैर आप देखिए परसों फ्लड आया था यहाँ पर एक इलाके में, हमने इनका जीना हराम कर दिया, उनको बारिश में हमने खड़ा वहाँ पर रखा और डिवाटरिंग वहाँ पर कराई। परसों हम वहाँ पर इरिगेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, सूखा पड़ गया था, हमने इनकी नींद हराम कर दी, सड़कों पर रखा दिन भर खेतों में कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। और इन्होंने एग्जाम साहब और जो लैंग्वेज उस वक्त यूज़ किया अपने आवाम के लिए, ये काम हमें डीडीसी साहब से, हमें कचरे का प्रॉब्लम है, सॉलिड वेस्ट का, आप वीडियो उठा के देख लीजिए, हमने उनको सड़कों पे खड़ा रखा है। ये काम हम डीडीसी साहब से लेते हैं। फंड्स क्या है, 50 लाख रुपए में क्या आ जाता है, 60 लाख रुपए में, 60 लाख में से अगर 40 लाख रुपए इन्होंने हॉस्पिटल को दिया है अगले साल को, देखिए ये अनप्रेसिडेंटेड है कि किसी कश्मीर में कहीं नहीं हो रहा है। आप जाने माने पत्रकार है, कश्मीर में नहीं हो रहा है कि एक डीडीसी साहब ने एक पूरे इलाके को जो पंचायत बॉडी है उनको एक कॉन्सेंसस बिल्ड किया, एक प्रोग्रेसिव माइंड सेट अप्लाई करता है। और यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जिसके लिए हम सेक्रेटरी लेवल पर पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन लोकल लेवल पे पूल करके 5-5 लाख 10-10 लाख रुपये जमा करके कल 60 लाख 1 करोड़ रुपये का एसेट सफा प्रोग्राम बनेगा। इसका फायदा किसको मिलेगा, सारे आवाम को मिलेगा। कल वहाँ पर हार्टिकल्चर का ऑफिस होगा, एग्रीकल्चर का ऑफिस होगा, कल वहाँ पर एक लाइब्रेरी होगी जहाँ की हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे, पटवारी साहब वहाँ पर होंगे, नायब साहब, ये फायदा किसको मिलेगा? हमें यही मैं आवाम से कहना चाहता हूँ कि अपने सरपंच साहबों को बोले कि ग्रेव यार्ड में हम खुद मिट्टी डालेंगे, हम
50 लाख रुपए के घर में रहते हैं, 1 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदते हैं, 5,000 रुपये हम कलेक्टिवली नहीं दे सकते अपने ग्रेवयार्ड की फिलिंग के लिए, उसकी पेंशन के लिए। हम पैसा कहाँ पे खर्च करते हैं? ये आवाम की जिम्मेदारी है। अपने जो नुमाइंदे हैं, उनके सरपंच हजरात हैं, उनको बोलना है कि हमें लाइब्रेरी चाहिए, हमें स्कूल को अपग्रेड करना है, हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बना के दे दो ब्लॉक लेवल पे, हमें मानसबल को बचाना है, एनवायरमेंट को बचाना है, हॉस्पिटल को अपग्रेड करना है। ये पुलों की सियासत अब छोड़नी चाहिए, नालियों की सियासत छोड़नी चाहिए, और जो ग्रेवयार्ड में मिट्टी डालना है ये भी हमें अब छोड़ना चाहिए। ये मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल साहब, आखिरी में जाते जाते मैं आपसे एक और अहम सवाल करना चाहता हूँ। तो जिस तरीके से परसों आप पे इल्ज़ाम आयद किए गए थे, उसके बाद हम आपसे पर्सनली मिले भी थे, और हमारा जर्नलिज्म एथिक्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी शख्स पे कोई भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है तो हम ऐसे ही सोशल मीडिया पे इसको ऐसे नहीं चला सकते हैं। हम आपके पास आए थे, आपने कहा था नहीं ये इल्ज़ाम जो है बेबुनियाद है, लेकिन आपका काम है, आपका हक है, आपका फ़र्ज़ है, आप इसको चलाए ताकि आपको वहाँ से भी लोग देख रहे हैं, आपको उनको जवाब देना है। बाकी मैं ठीक हूँ, मैं गलत हूँ, वो मुझे पता है, वो काम मुझे है, और मुझे लोगों को जवाब देना फ्यूचर में वो मेरा काम है। और आखिर में जो लोग ऐसे हैं जिनको आपके बारे में अब गलतफहमी हुई, जिन्होंने सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखा था, या बाकी भी जो सफापुरा के लोग हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? देखिए, ये जो कुछ 4-5 बंदे हैं, मैंने पिछली बार भी कहा, मीडिया पे बोलता हूँ कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं डरता हूँ गरीब लोगों से, मैं डरता हूँ सिविल सोसाइटी से जो सफापुरा में, मैं डरता हूँ आम लोगों से, मैं उन लोगों से डरता हूँ जो डेवलपमेंट की बात करें, फिर मुझे ना आए उनका काम करना, उस चीज़ का डर है मुझे। जी बिल्कुल। नाज़रीन किराम, जिस तरीके से बात हमने की अभी डीडीसी सफापुरा अब्दुल रशीद भट्ट साहब के साथ, मैंने साफ तौर पे कहा है कि डरता तो मैं किससे नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में आया ही होगा कि वही लोग नहीं डरते हैं जो गलत नहीं होते हैं। और इनके साथ हमने बात की, यहाँ की डेवलपमेंट के रिलेटेड बात की, और जो पैसा इनके पास आता है, फंड जो आते हैं वो कहाँ पर यूटिलाइज होते हैं। और यहाँ पे सिविल सोसाइटी के स्पोक्स पर्सन यहाँ पे सोहेल अहमद साहब मेरे साथ बात कर रहे थे, इनके साथ भी हमने बात की। इन्होंने भी एक लोगों के लिए अच्छी मैसेज दी, पढ़े लिखे यूथ जो है उनको फ्रंट पे आना चाहिए, उनको यहाँ पे पंचायत घर पे आना चाहिए, उनको हिसाब लेना चाहिए। हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीछे जो बातें कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है, और उससे हमारे समाज के साथ साथ हमारे सफापुरा ब्लॉक में भी बुरे असर जो हैं वो पड़ सकते हैं। भारत, आप देखते रहे द कश्मीर सीक्रेट, कैमरामैन एहसान यूसुफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम।